संलेखना सूत्र शरीरमाहुना वत्ति जीवो उच्चैनाव्यो संसारो अर्णवो वुत्तो जम तरन्ति महेशिनो बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कयाइवी पूवकमक्षयट्ठाय इमं देहं समुद्धरे धीरेण विमर्यवं काउरिसेण अवस्समर्यवं तम्मा अवस्समरणे वरं खुधीरत्तणे मरियुम् इक्कं पंडियमरणं छिंदई जाई सयाणि बहुयाणि तम मरणं मरियव्वं जेणमो सुमवो होई इक्कं पंडियमरणं परिवज्जै सुपुरिसो असंभन्तो क्षिप्पं सो मरणाणं काहि अंतं अनन्ताणम् चरे पयायिं परिसंकमाणो जम किंचिपासं इह मन्नमाणो लाभंतरे जीव्यबूह भत्ता पच्चा परिन्नाय मलावदंसी तस्सन कप्पदि भत्त पैन्न अनुवर्ठ्ये भये पुरदो सोमरणं पत्थितो दीहु सामन्ननिविन्नो संलेहनाय दुविहा अभ्यन्तरीयाय बाहिरा चेव अभ्यन्तरीया कसाये बाहिर्या होय शरीरे कसाये पैणुए किंचा अप्पाहारे तितिक्षये अभिक्खु गिलायज्जा आहारस्येवन्त्यम् न विकारणं तनमो संथारो न वियफासुया भूमि अप्पा खलु संथारो होई विशुद्धो मनोजस्स नवितं सत्थं च विषं च दुप्पौतु वकुणैवे आलो जन्तं व दुप्पौत्तं सप्पूव पभाइनो कुद्धो जम कुनै भावसल्लम अनुद्धियम् उत्तमट्टकालम्मि दुल्लह बोहियत्तम् अनंत संसार्यत्तं च तो उद्धरन्ति गारवरहिया मूलं पुनः भवलयाणं मिच्छा दंसनसल्लं मायासल्लं नियाणं च मिच्छद्दंसनरत्ता सणियाना कन्नलेशमुगाढा यजे मरन्ति जीवा तेसिं दुलहा भवे बोहि सम्मद्दंसनरत्ता अनियाणा सुप्ता
कलेशमुगाढा यजे मरन्ति जीवा तेषिं सुलहा भवे बोहि आराहणाय कज्जे परियम्मं सर्वदा विकायवम् परियम्भवाविदस्सहु सुहसज्जाराहणा होई जहराय कुलपशुओ जोग्गं नित्यमविकुणै परिकम्मं तोजिदकर्णो युद्धे कम्मसमर्थो भविष्यदिः यसामन्नं साधुभिः कुणदि नित्यमवियोगपर्यम्मं तोजिदकर्णो मरणे ध्यानसमर्थो भविष्यति मोक्षपहे अप्पाणं ठवेहितं चेव जाहितं चेव तथैव विहर नित्यं मा विहरसु अन्नद्रव्येषु इह पुरलोकासंसर्पो जीयमरणभोगेषु वज्जिज्जा भाविज्जय असहं संसारपरिणामम् परदौवादो दुर्गैः सौदौवादो सुग्गैः होई येणाउ सदव्ये कुणहिरै विरै यरम्मि Samana Suttam, Sutra 33, Salekhana Sutra, Percepts on Passionless Deaths. Sutra 567, English rendering. The body is called a boat. The soul is a boatman. The worldly existence is an ocean which the great sages cross over. Gatha 568. He who has an eye on his upward journey, that is the liberation, should not think of the external objects, that is the worldly pleasures. He should protect his body from annihilating the past karmas. Sutra 569. The man possessed of a calm disposition must die. The man possessed of a cowardly disposition too must die. So when death is inevitable in any case, it is better to die possessed of a calm disposition. Gatha 507. One death of the wise man puts an end to hundreds of births. Hence one ought to die such a death as earns one the title of well died.
Gatha 571. A wise person who is free from anxiety dies a peaceful death once. By such death, he immediately puts an end to an infinite number of deaths. Gatha 572. One ought to undertake every activity with the fear of bondages. That is, the possibilities of bondage. One ought to prolong one's life in the hope of acquiring every new gains in the future, and at the end one ought to destroy one's defilements with prudence. Gatha 573. He who has no fear of any kind before him should not take the vow of desisting from food and water. If he seeks death, he should be treated as disgusted, taken even from his monkhood, that is, fast unto death. Gatha 574. A Salekhana, that is the fast unto death, is of two kinds, internal and external. Internal Salekhana consists in emaciating the passions, while the external one consists of emaciating the body. Gatha 575. A monk adopting the vows of Salekhana should first subdue his passions and then reduce the intake of his food gradually. But when the body becomes extremely weak, he should stop taking any food. Gatha 576. A person whose mind is pure needs neither a bed of straw nor a faultless ground. His soul itself becomes his bed. Gatha 577 and 578. Mental thorns, that is, shalya, like deceit, perverted attitude, and a desire for worldly enjoyments in next life, in a person observing the vows of Salekhana, cause him greater pain than a tainted weapon, poison, devil, an evil motivated amulet, or an angry serpent. For in the presence of these shalyas, right understanding becomes impossible, and involvement in an infinite transmigratory cycle becomes inevitable. Gatha 579. A monk who is free from pride cuts down the three roots of rebirth, that is, the thorns of wrong faith,
deceit, and desire for worldly enjoyment in next life. 580. Hence, those persons who die as attached to wrong faith, as full of desire for sensuous enjoyment in return for the good acts performed, as subject to Krishna Lesha, that is the black coloring, do not find it easy to attain right understanding. Gatha 581. On the other hand, those persons who die as attached to right faith, as devoid of desire for sensuous enjoyment in return for the good acts performed, as subject to Shukla Lasya, that is white coloring, find it easy to attain right understanding. Gatha 582. One who is desirous of performing Aradhana, the set of auspicious acts to be performed at the time of death, ought to always perform parikraman and or pratikraman, practice of the set of auspicious acts, for one whose mind is permitted with parikramana, finds it easy to perform aradhana. Gatha 583 and 584. One who is born in a royal family and performs his military exercises regularly will become competent to win all wars. Similarly, a monk who regularly engages himself in meditation and practice of the vows of monastic life conquers his mind and will become competent to practice meditation at his death. Gatha 585. Fix your soul on the path of liberation and meditate on that soul only. Always be engrossed in it and not in any other substance. Gatha 586. One should give up desire for pleasure in this world as also in the next, should give up liking either for life or for death or for enjoyments, should engage thought in the evil consequences available in the world of transmigration. Gatha 587. One gets birth in a miserable state by being devoted to other substances, that is, worldly things, and birth in a good state by being devoted to contemplation of one's own soul. Knowing this, one should be absorbed in meditation of one's soul's
and desist from thinking other substances. Samana Suttam, Sutra 33, Salekhana Sutra, Hindi rendering, Gatha 5, 6, 7। शरीर को नाव कहा गया है और जीव को नाविक। यह संसार समुद्र है जिसे महर्षि जन तैर जाते हैं। गाथा 5, 6, 8। ऊर्ध्व अर्थात मुक्ति का लक्ष्य रखने वाला साधक कभी भी बाह्य विषयों की आकांक्षा न रखे। पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए ही इस शरीर को धारण करे। गाथा 5, 6, 9। निश्चय ही धैर्यवान को भी मरना है और कापुरुष को भी मरना है। जब मरण अवश्य स्वभावी है तो फिर धीरता पूर्वक मरना ही उत्तम है। गाथा 5, 7, 0। एक पंडित मरण यानी के ज्ञान पूर्वक मरण सैकड़ों जन्मों का नाश कर देता है। अतः इस तरह मरना चाहिए जिससे मरण सुमरण हो जाए। गाथा 5, 7, 1। असंभ्रांत यानी कि निर्भय सत्पुरुष एक पंडित मरण को प्राप्त होता है और शीघ्र ही अनंत मरण का बार बार के मरण का अंत कर देता है। गाथा 5, 7, 2। साधक पग पग पर दोषों की आकांक्षा यानी कि संभावनाओं को ध्यान में रखकर चले। छोटे से छोटे दोषों को भी पाश समझे, उससे सावधान रहे। नए नए लाभ के लिए जीवन को सुरक्षित रखे। जब जीवन तथा देह से लाभ होता हुआ दिखाई न दे तो परिज्ञा पूर्वक शरीर का त्याग कर दे। गाथा 5, 7, 3। किंतु जिसके सामने अपने संयम तप आदि साधना का कोई भय या किसी भी तरह की क्षति की आशंका नहीं है, उसके लिए भोजन का परित्याग करना उचित नहीं है। यदि वह फिर भी भोजन का त्याग कर मरना ही चाहता है तो कहना होगा कि वह मुनित्व से ही विरक्त हो गया है। गाथा 5, 7, 4। संलेखना दो प्रकार की है
आभ्यंतर और बाह्य कषायों को कृश करना आभ्यंतर संलेखना है और शरीर को कृश करना बाह्य संलेखना है। गाथा 575 संलेखना धारण करने वाला साधु कषायों को कृश करके धीरे धीरे आहार की मात्रा घटाए। यदि वह रोगी है, शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है, तो आहार का सर्वथा त्याग कर दे। गाथा 576 जिसका मन विशुद्ध है, उसका संस्कारक न तो तृणमय है और न प्रासुक भूमि है, उसकी आत्मा ही उसका संस्कारक है। यानी के संलेखनाधारी के लिए प्रासुक भूमि में तृणों का संस्करण लगाया जाता है, जिस पर वह विश्राम करता है। उसी का लक्ष्य करके यह भाव कथन किया गया है। आदि प्रमादी का उतना अनिष्ट नहीं कर सकते जितना अनिष्ट समाधि काल में मन में रहे हुए माया मिथ्यात्व व निदान शल्य करते हैं। इससे बोधि की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है तथा संसार का अंत नहीं होता है। गाथा 579 अतः अभिमान रहित साधक पुनर्जन्म रूपी लता के मूल अर्थात मिथ्यात्व दर्शन शल्य, माया शल्य व निदान शल्य को अंतरंग में निकाल देते फेंकते हैं। गाथा 580 इस संसार में जीव मिथ्या दर्शन में अनुरक्त होकर निदान पूर्वक तथा प्रगाढ़ कृष्ण निष्ठा सहित मरण को प्राप्त होते हैं। उनके लिए बोधि लाभ दुर्लभ है। गाथा 581 जो जीव सम्यक दर्शन के अनुरागी होकर निदान रहित तथा शुक्ल लेशा पूर्वक मरण को प्राप्त होते हैं, उनके लिए बोधि की प्राप्ति सुलभ होती है। गाथा 582 इसलिए मरण काल में रत्नत्रय की सिद्धि या संप्राप्ति के अभिलाषी साधक को चाहिए कि वह पहले से ही निरंतर परिकर्म अर्थात सम्यक्त्वादि का अनुष्ठान या आराधना करता रहे, क्योंकि परिकर्म का अभ्यास करते रहने वालों की आराधना सुखपूर्वक होती है। गाथा 583 584 राजकुल में उत्पन्न राजपुत्र नित्य समुचित शास्त्राभ्यास करता रहता है तो उसमें दक्षता आ जाती है और वह युद्ध में विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसी प्रकार जो समभावी साधु नित्य ध्यानाभ्यास करता है,
उसका चित्त वश में हो जाता है और मरण काल में ध्यान करने में समर्थ हो जाता है। गाथा 585। वो भव्य, तू मोक्ष मार्ग में ही आत्मा को स्थापित कर, उसी का ध्यान कर, उसी का अनुभव कर तथा उसी में विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। गाथा 585। सल्लेखनारत साधक को मरण काल में इस लोक और परलोक में सुखादि के प्राप्त करने की इच्छा का तथा जीने और मरने की इच्छा का त्याग करके अंतिम सांस तक संसार में अशुभ परिणाम का चिंतन करना चाहिए। गाथा 587। परद्रव्य अर्थात धन धान्य, परिवार व देहादि में अनुरक्त होने से दुर्गति होती है और स्वद्रव्य अर्थात अपनी आत्मा में लीन होने से सुगति होती है। ऐसा जानकर सद्रव्य में रत रहो और परद्रव्य में विरत रहो। समण सुत्तम सूत्र 33 सल्लेखना सूत्र संस्कृत रेंडरिंग। गाथा 567। शरीर माहुर्नोरिति जीव उच्यते नाविकः संसारोर्णववत यत्तरन्ति महर्षयः। गाथा 568। बाह्यमूर्धवमादाय नवकाडक्षेत कदाचित् अपि पूर्वकर्मक्षयार्थाय इमं देह समुद्धरे। गाथा 569। धीरेणापि मर्तव्य कापुरुषेणाप्यवश्य कर्तव्यम् तस्मात् अवश्य मरणे वर खलु धीरत्वे मर्तुम्। गाथा 570। एक पंडित मरण छिनन्ति जाति शतानि बहुकानि तद मरणे मर्तव्य येन मृत सुमृत भवति। गाथा 571। एक पंडित मरण प्रतिपद्यते सुपुरुष असंभ्रांत क्षिप्रस्य मरणाणां करिष्यति अनंतम अनंतानां। गाथा 572। चरेत पदानि परिशंख कमान यत्
किंचित पाश्यमिह मन्यमान लाभांतरे जीवित बृहयित्वा पश्चात् परिज्ञाय मलावध्वसी। गाथा 573। तस्य न कल्पते भक्त प्रतिज्ञा अनुपस्थिते भयपुरतः सो मरण प्रेक्षमाण भवति हि श्रामण्यर्णिर्वर्णः। गाथा 574। सल्लेखना च द्विविधा अभ्यन्तरिका च बाह्या चैव। अभ्यन्तरिका कषाये बाह्या भवति च शरीरे। गाथा 575। कषायान् प्रतनूर्णं कृत्वा अल्पाहार तितिक्षते अत भिक्षुर्ग्लायेत् आहारस्यैव अन्तिकम्। गाथा 576। नापि कारण तृणमय सस्तार नापि च प्रासुका भूमि आत्मा खलु सरतारो भवति विशुद्धमनो यस्य। गाथा 57578। तत् शस्त्रं च विपं च दुष्प्रयुक्तो वा करोति वैताल। यंत्र वा दुष्प्रयुक्त सर्पो वा प्रमादिन क्रुद्धः। यत् करोति भावशल्यन् मनु दुद्धृतम् उत्तमार्थकाले। दुर्लभ बोधिकत्वम् अनन्तसारिकत्वं च। गाथा 579। तदुद्धरन्ति गौरवरहिता मूल पुनर्भवलतानां मिथ्यादर्शनशल्य मायाशल्य निदान च। गाथा 580। मिथ्यादर्शन रक्ता सानिदान कृष्णलेशामवगाढ़ा इति ये ब्रियन्ते जीवास्तेषा दुर्लभा भवेत् बोधि। गाथा 581। सम्यक् दर्शनरक्तः अनिदाना शुक्ललेशामवगाढ़ाः इति ये मीयन्ते जीवास्तेषां सुलभा भवेत् बोधिः। गाथा 582। आराधनायाः कार्ये परिकर्म सर्वदा अतिकर्तव्यम्। परिकर्म भावितस्य खलु
सुख साध्या आराधना भवति। गाथा 583-584। यथा राजकुल प्रसूतो योग्यं नित्यमपि करोति परिकम्मं तत् जित्कर्णो युद्धे कर्म समर्थो भविष्यति। एक श्रामण्य साधुरपि करोति नित्यमपि योग परिकर्मं तत् जितकर्णः मरणे ध्यान समर्थो भविष्यति। गाथा 585। मोक्ष पथे आत्मान् स्थापयत चैव ध्यायत चैव तन्नैव विहर नित्य मा विहरस्व अन्यद्रव्येषु। गाथा 586। इह परलोकाशसा प्रयोगो तथा जीवित मरण भोगेषु वर्जयेत भावयेत च अशुभं संसार परिणामम्। गाथा 587। परद्रव्यात् दुर्गति स्वद्रव्यात् खलु सुगति भवति इति ज्ञात्वा स्वद्रव्ये कुरुत रति विरतिम् इतरस्मिन्।